स्क्रीन विजिबल है बेटा? हेलो. So we were discussing Parsis and Christians. The right of maintenance for Parsis and Christians are very similar. Both concede the right only to women. तो हम ये देखते हैं कि Parsis और Christians में बहुत clear cut हेलो बेटा ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए स्क्रीन शेयर करें, शायद विजिबल है स्क्रीन. So the right of maintenance for Parsis and Christians are very similar. Both concede the right only to women. तो हमने ये डिस्कस किया कि Parsis और Christian अगर हम रिलीजन में देखें तो वहाँ जो मेंटेनेंस का राइट है वो बहुत क्लियर है कि विमेन को ही मिलेगा, यानी आदमी को औरत को देना है. The husband's ability, the wife's own assets, and the conduct of the parties. The Indian Divorce Act 1989, which governs Christians, gives discretion to the court to order the settlement of the wife's property for the benefit of the husband or the children if the divorce has been obtained by the husband because of the wife's adultery. If the court has been decreed damages to the husband against the adultery, it may order the settlement of the whole or part of this amount for the benefit of the children or maintenance of the wife. तो इसमें बहुत सारे provisions हैं कि मान लीजिए अगर relationship में adultery है तो फिर जो husband wife और पूरी property है उसको देखा जाएगा और उसके अनुसार बच्चों के वेलफेयर के लिए जो डिसीजन होगा वो किया जाएगा. Inheritance. The Indian Succession Act 1925, which governs Christians, Jews, Parsis, and those married under the special. Hello. Yes, ma'am. Okay, so inheritance अगर हम Indian Succession Act को देखते हैं 1925, which governs इसमें Christian, Jews, Parsis और those married under Special Marriage Act, confirms no restriction on the power of a person to will away his property and the protection enjoyed by a Muslim widow to a share of the state and by the Hindu widow for maintenance is denied to other widows under the law. It is desirable to place some restrictions on the right to testation similar to that prevailing under Muslim law to prevent a widow from being left completely destitute. The amended law provides that in cases of interstate succession, the widow with no lineal descendant is lifted to the whole property if its value does not exceed rupees 5,000 in cases where it exceeds this amount. This provision is not extended to Indian Christians and Hindus, Buddhists or Jains. Succession to whose property gives right to children's widows. Its denial to these groups cannot be justified. Hindu law अगर हम देखें, pre-independence India had several systems of succession among Hindus, in most of which the position of women was one of dependence with barely and propriety right. Even where they enjoyed some rights, they had only a life interest and not full ownership. The Hindu Succession Act 1956 made some radical changes. The most important being equal right of succession between male and female heirs in the same category. It also simplified the law by abolishing the different systems prevailing under the Vitakshara and Devabhaga school and extended the reformed law to persons in South India previously governed by the Maruma Katiyam. The class 1 heirs of a man who take the property in equal share or absolute as absolute owners are the widows, son, daughter, widow of preceded son and sons and daughters of preceded son's daughter. तो हमें पता है अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्टोरिकली देखते हैं तो हिंदू लॉ को अगर हम देखें तो इसमें प्रॉपर्टी राइट्स में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था मेल और फीमेल में, और बहुत सारे जो है डिफरेंट एरियाज में स्टेट वाइज और रीजन वाइज उसमें हम देखते थे. पर अब इसमें अमेंडमेंट करके ये चीज कर दिया गया है कि मेल या फीमेल जो भी हमारा हम कह सकते हैं डिसेंडेंट हो, ओनर हो, उसको इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स बच्चों को होना चाहिए, मिलना चाहिए. Unfortunately, traditional resistance led to some compromises in the original intentions. For instance, one major factor responsible for continuing the inequality between sons and daughters is the retention of the take share comparency whose membership is confined only to males. A number of decisions and laws like the Hindus Women Right Property Act and the Hindu Succession Act have made inroads with the concept of the capacitary.
तो हम देखते हैं जो पुराने लॉज भी थे वो बहुत एडमेंट थे या स्टीरियोटिपिकल थे या बायस थे विमेन को लेकर। तो अब उसमें हम कह सकते हैं अमेंडमेंट एक्ट के जो अभी प्रेजेंटली हमारा लॉ है उसमें जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो मेल और फीमेल को, अगर हम हिंदू एक्ट को देखें, वो इक्वल कर दिया गया है कि वो लड़की हो या लड़का हो इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम कर सकता है। अगर हम जनरल प्रैक्टिसेस देखते हैं तो प्रैक्टिसेस में क्या होता था कि अगर लड़की अनमैरिड है तो जो प्रॉपर्टी शेयर है उसको दिया जाता था, और अगर उसकी शादी हो गई है वो चली गई है तो उसको नहीं देते थे, जो हिंदूज में एक प्रचलन था। पर अब जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें बहुत क्लियर कट ये मेंशन है कि चाहे उसकी मैरिज हुई हो या नहीं हो, जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका इक्वल शेयर है, अधिकार है, और वो चाहे तो उसको क्लेम कर सकती है। अब पर वो फिर एक सवाल है कि कितनी जो बच्चियां हैं या लड़कियां हैं उनको परिवार देता है और वो क्लेम करती हैं। तो ये चीज जब तक मिटेगी नहीं तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हम देखते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की और प्रॉपर्टी राइट्स की, है ना। हमने ये देखा था कि जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड भी हम देखें तो जो विमेन है उनका इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें प्रॉपर्टीज रियल स्टेट प्रॉपर्टीज भी आती हैं, उसमें शेयर बहुत कम है। और ये आपको एक बहुत हम कह सकते हैं हिम्मत देती है ना। मान लीजिए घर आपके नाम है या लैंड आपके नाम है, छत आपकी है, तो यू गेट अ स्टेबिलिटी, यू गेट अ कॉन्फिडेंस इन लिविंग योर लाइफ। और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि विमेन को जब वो अधिकार नहीं मिलता अपने खुद के परिवार से तो फिर वो जो है कमजोर महसूस करती है। तो अगर हम प्रॉपर्टी और इकोनॉमिकली अगर देखें विमेन को इक्वल शेयर मिले तो ऑब्वियसली इस स्थिति में बदलाव आएगा, चेंज आएगा। फैमिली लॉज डील विद मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा व्हिच मैटर टू द फैमिली मेंबर्स। तो अगर हम फैमिली लॉज की बात करें तो उसमें मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। Marriage in the Vedic society was considered as a sacrament. In the modern society, marriage is considered as a contract. The Hindu Marriage Act of 1955 has reformed the Hindu laws of marriage. Following are the impart aspects. अब हम देखते हैं कि क्या changes जो है वो law में भी आए। अगर हम हिंदू religion को देखें तो marriage has the characteristics of both a sacrament and a contract. पहले अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो उसमें जो मैरिज होती है वो एक सैक्रामेंट हम कह सकते हैं, एक पवित्र बंधन है जिसको हम रिलीजियसली लेते हैं। और तो जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें उसके साथ इसे कॉन्ट्रैक्ट भी हम कंसिडर करते हैं, ताकि जो लॉज हैं या हम कह सकते हैं अधिकार है उनको हम इस फॉर्म में दे सकें और उसको हम डॉक्यूमेंट भी कर सकें। द सैक्रामेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एविडेंट इन द वेरियस सीक्रेट सेरेमनीज एज सब। पर तो हमें पता है अलग अलग जो रिचुअल्स हैं हमारे प्रैक्टिसेस में, जब शादी होती है उसमें हम वाव्स लेते हैं, है ना, कसम खाते हैं और जो भी चीजें हैं, तो वो जो सेक्रामेंट है उसको भी मेंटेन किया गया कि वो सारी चीजें होती हैं वैसे ही। द कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एविडेंट ऑन कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इफ ऑफ सम इम्पोर्टेंस दो मेट विद ऑफ एन एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो दोनों पार्टीज मिलकर हम कह सकते हैं निर्धारित करती हैं, अपना कंसेंट देती हैं कि जो मैरिज है उसको एक्सेप्ट करती है। Both the parties must be of Hindu religion. The marriage must be monogamous. Bigamy is punishable. और हिंदू रिलीजन की हम बात करें तो दोनों पार्टीज जो है वो उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, लड़के और लड़की की बात कर रहे हैं। और द थर्ड थिंग इज कि जो मैरिज है वो मोनोगेमस होगी, उसमें बाइगैमी या पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। The Hindu Marriage Act does not make legislation of marriage compulsory. However, legistration of marriage is a proof of marriage. और अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें, हमें पता है मुस्लिम्स में ये है कि एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वो हम साइन करते हैं लड़का लड़की दोनों कि हम जो है निकाह कर रहे हैं या मैरिज कर रहे हैं। और हिंदूज में ये जो लीगल प्रोविजन है यानी डॉक्यूमेंट साइन करने का या उसको पेपर पर लाने का, वो कंपल्सरी नहीं है, आपकी इच्छा है। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट बनता है तो अगर जो एजुकेटेड लोग हैं वो प्रूफ रखना चाहते हैं अपनी मैरिज का तो वो जाकर इसको करा सकते हैं। अदरवाइज जो सिंपल रिचुअल्स होते हैं उसके थ्रू भी मैरिज कंसिडर किया जाता है। फिजिकल रिलेशन विद द थर्ड पार्टी आफ्टर मैरिज, फिजिकल एंड मेंटल क्रूएलिटी, ये चीजें हैं जो पनिशेबल हैं, जो क्राइम के अंतर्गत आती हैं कि आप फिजिकल रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन के साथ रखते हो मैरिज के बाद, तो दैट इज समथिंग कंसिडर्ड एज रॉन्ग। फिजिकल एंड मेंटल क्रूएलिटी अगर आप करते हो, डिसर्शन फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years और मोर। इसका मतलब क्या है कि मैरिज हो गई है पर भी जो हस्बैंड है वो वाइफ को 2 साल से कोई फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है, दूर रखता है, या वाइस वर्सा वाइफ ऐसा कर रही है, तो
which is considered not right under law, अगर हम मैरिज की बात करें तो. कन्वर्शन टू अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन में हम कन्वर्ट होते हैं आफ्टर मैरिज. मे बी हमने कहा ना कि कई बार लॉ का जो है वो गलत उपयोग भी होता है कि मुझे तीसरी मतलब सेकंड मैरिज करनी है, या मे बी हम पॉलीगैमी या बायगैमी में जाना चाहते हैं, इसलिए हम रिलीजन बदल लें. दैट इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, क्योंकि आप पर्पसली इस चीज के लिए कर रहे हैं. सफरिंग फ्रॉम अ कंटेजियस एंड इनक्यूरेबल form of leprosy. The couple has not cohabitated for the period of 1 year after judicial separation. A wife can seek divorce on grounds such as marital rape. Bigamy is an important reason for seeking divorce. तो ये कारण है कि ये चीजें अगर मैरिज में होगी तो आप फिर डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं. मेंटेनेंस. In the Hindu law, the term maintenance has been used in a wide sense. The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 defines maintenance as a provision of food, clothing, residence, education, medical attention. In the case of unmarried daughter, it includes reasonable expenses of her marriage. तो ये जो maintenance law अगर हम हिंदू law के अंदर देखते हैं तो उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं. डिवोर्स के बाद चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, रेजिडेंस रहने का, पढ़ाई का, मेडिकल खर्चा हो. और अगर बेटी अनमैरिड है तो उसकी मैरिज भी जो है उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं. इट इज डायरेक्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ, और हस्बैंड की ड्यूटी है कि अपनी वाइफ का मेंटेनेंस को जो है उसको देगा और मेंटेन कराएगा. दिस ऑब्लिगेशन बिगिंस विद मैरिज बट डज नॉट एंड इवन आफ्टर एंड ऑफ द मैरिज. ये मैरिज के बाद उसकी ड्यूटी है, और मैरिज यानी डिवोर्स के बाद भी ये बाध्यता रहती है कि इन चीजों के लिए उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा. इट मीन्स द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इवन आफ्टर द डिसीजन ऑफ मैरिज. तो ये हम देखते हैं कि मतलब विमेन को ये अधिकार हिंदू लॉ में दिया गया है कि डिवोर्स के बाद भी उसका अधिकार है, और ये जो मेंटेनेंस है वो हस्बैंड को देना होगा. The wife's right to maintenance may arise in the following three situations. When the wife lives with her husband, in fact, even an unchaste wife who lives with her husband can claim maintenance. When the wife lives apart from her husband with his consent. When the wife lives separately from her husband, either through judicial separation or through divorce. तो इन तीनों कंडीशन में मेंटेनेंस देना अनिवार्य है. पहला क्या? When the wife lives with her husband, in fact, even an unchaste wife who lives with her husband can claim maintenance. अगर वाइफ हस्बैंड के साथ रह रही है तो वो मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है, मांग सकती है. अगर कोई पर्सन सेकंड मैरिज करता है या इस तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है तो उस वाइफ को भी अधिकार है कि वो मेंटेनेंस मांग सकती है. When the wife lives apart from, अगर वो हस्बैंड से अलग रह रही है, उसके कंसेंट के साथ दोनों ही डिसाइड करके अलग अलग रह रहे हैं, तो भी वो मेंटेनेंस हस्बैंड से मांग सकती है. When the wife lives separately from her husband either through, और अगर जुडिशियल यानी डिवोर्स प्रॉपर जो जुडिशरी से वो अलग हुए हैं और उसके बावजूद जो वाइफ है वो अपना मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है. There are other elements of maintenance which are related to the daughter, और डॉटर से रिलेटेड ये मेंटेनेंस जो है वो भी क्लेम किया जा सकता है अलग से अगर अनमैरिड डॉटर है. Unmarried daughter, legitimate or illegitimate daughter, widowed daughter, etc. The claim to maintenance is limited to their maidenhood. As soon as the daughter is married, she cannot claim maintenance from her father. और अगर कोई अनमैरिड जो बच्ची है उसके लिए भी अलग से जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है वो मेंटेनेंस मांग सकती है. मान लीजिए वाइफ की डेथ हो गई, वाइफ नहीं है, बच्ची सिर्फ है, तो वो भी क्लेम कर सकती है फादर से मेंटेनेंस को. और या कोई डॉटर है जो विडोड है यानी जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. द डॉटर कैन नॉट गेट मेंटेनेंस इफ दे सीज टू बी हिंदूज. If they convert their religion, because it is Hindu, ये जो हिंदू लॉ एक्ट है उसके अंतर्गत आता है, तो रिलीजन हिंदू होना आवश्यक है जब लॉज की बात करते हैं तो. और अगर जो लड़की है उसकी शादी हो गई है तो फिर वो मेंटेनेंस फादर से क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि फिर वो हस्बैंड से क्लेम करेगी. विडोड डॉटर कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस आफ्टर रीमैरिज, और अगर जो विधवा विडोड डॉटर है उसकी दूसरी शादी हो गई है तो भी फिर वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती. Property related to succession, the property of a Hindu female has the following categories. Property inherited by a female from her father or mother. This does not include the property which she acquires at the time of her marriage from the father or mother. Such property is her Sridhan.
सो जब हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो जो भी प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करती है अपने पापा से, मम्मी से, उस पर उसका अधिकार होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम उससे एक्सक्लूड करते हैं जो मे बी मैरिज के टाइम पे अपनी स्वेच्छा से ज्वेलरी दे रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट्स दे रहे हैं लड़की को। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. A daughter in law inherits from her father in law only when she is a widow. It means she cannot inherit if her husband is alive. तो ये हम लॉ में प्रोविजन देखते हैं कि जो फादर इन लॉ है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे को मिलेगी। इन केस बेटे की अगर डेथ हो जाती है तो फिर जो विडो जो उसकी वाइफ है उसका अधिकार बनता है कि जो प्रॉपर्टी बेटे की थी वो उसको ट्रांसफर होगी, उसको मिलेगी। Property obtained from any other source by inheritance or otherwise. A person who dies without making a will is intestate. The property of a Hindu female died in estate shall be disputed as follows: upon the sons and daughters, husband and children of any preceded son or daughter, upon the heirs of the husband, upon the father and mother, upon the heirs of the father, upon the heirs of the mother. Guardianship is a person responsible for taking care of a minor or his property or both person and property. A minor is considered to be a person who is physically and intellectually imperfect and immature, hence needs someone's protection. Certain important aspects of guardianships are as follows. कई बार क्या होता है, माता पिता या जो भी हैं जो पेरेंट का रोल अदा कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है और जो बच्चा है वो 18 इयर्स का नहीं है, माइनर है, तो उसमें फिर गार्डियनशिप आती है। वो व्यक्ति जो उसकी केयर करेगा जब तक कि बच्चा जो है वो मैच्योर नहीं हो जाता। Father is the natural guardian of his minor children, both sons and daughters. In case mother की अगर डेथ होती है तो जो पिता हैं वो गार्जियन हो जाएंगे बच्चों के। Where a father is alive but he is not functional natural guardian, the mother can act as a natural guardian. The mother is the natural guardian of her minor legitimate children only if the father is dead or is incapable of acting as a guardian. In case vice versa, अगर father नहीं है तो mother और mother नहीं है तो father. The mother is the natural guardian of the minor illegitimate children even if the father is alive. So the Hindu Minority and Guardianship Act lays down that the custody of a minor below the age of 5 shall be with the mother unless the welfare of the minor requires otherwise. अगर बच्चा 5 साल का है या 5 साल से छोटा है तो ऑटोमेटिकली जो गार्जियनशिप है अगर वो अलग हो रहे हैं तो माँ को दी जाती है इन जनरल. Step parents are not entitled to guardianship unless they are specially appointed by the court. अगर हम कह सकते हैं सौतेले माता पिता हैं तो उनको कभी भी गार्जियनशिप जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं दी जाती है, अदरवाइज जो नेचुरल पेरेंट्स उन्हीं को दी जाएगी. The natural guardian has the right to protect the property of the minor. Remarriage of the mother is no longer a disqualification, and a mother who has remarried does not lose her right of guardianship. अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो ऐसा नहीं है जो उसका बच्चा है उससे उसकी गार्जियनशिप छीन ली जाएगी या उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो बच्चे की प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी रिटेन करेंगे. मुस्लिम फैमिली लॉज, अब हम देखते हैं मुस्लिम फैमिली लॉज क्या हैं. A Muslim marriage, nikah, is a contract made between two persons of opposite sex with the physical relationship, procreation, and the legalizing of the children born out of the union. Following are essential elements of marriage. अगर हम मुस्लिम मैरिज को देखें जिसे निकाह कहते हैं, वो बेसिकली एक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है. दो लोग जो है सोशली लीगली जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम दोनों जो ऑपोजिट सेक्स के हैं साथ रहेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप में रहेंगे और उसके द्वारा जो भी बच्चे होंगे उनको जो है हम जायज करेंगे, लीगलाइज रखेंगे और आगे के जो भी हम कह सकते हैं बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलेंगे. और ये कुछ एलिमेंट्स हैं निकाह के मुस्लिम मैरिज के.
Marriage is considered as a civil contract. जो भी हमने डिस्कस किया वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है. A priest और काजी is necessary to for its performance. और जो priest हैं या जिन्हें हम काजी कहते हैं उनको उन्हीं के प्रेजेंस में जो है इसको किया जा सकता है. Every Muslim who has attained puberty, who is of a sound mind and can enter into a contract of marriage. और सिंपल सा रूल है कि अगर प्यूबर्टी है और जो मेंटल स्थिति है वो ठीक है, नॉर्मल है, तो वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस हु आर द सेम एंड अडल्ट मुस्लिम्स इज एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज. और 2 गवाहों की जरूरत होती है जो अडल्ट मुस्लिम्स हो और वो गवाही दें उनकी मैरिज की. द मुस्लिम वुमन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड मैरिज एक्सेप्ट विद अ मुस्लिम. और अगर जो व्यक्ति है जिसके साथ मैरिज हो रही है उसका मुस्लिम होना जरूरी है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, तभी उस मैरिज को वो वैलिड मानते हैं. Under the Muslim law, a man can have a maximum number of 4 wives at the same time, provided he treats them equally. However, a Muslim woman is entitled to have only one husband and one at one time. और जो मुस्लिम हम कह सकते हैं मेन है उन्हें ये अधिकार है या उन्हें ये राइट दिया गया है कि वो 4 वाइफ्स जो है वो एक समय पर रख सकते हैं, पर चारों को जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल रखें. पर विमेन को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो एक से ज्यादा हस्बैंड रखें. The registration of marriage is not compulsory. और रजिस्ट्रेशन कराना मैरिज जो है का वो कंपल्सरी नहीं है. Muslims follow the practice of meher is a sum of money or other property which the wife is entitled to receive from the husband in consideration of marriage. This amount may be fixed either before the marriage, at the time of the marriage or after the celebration of the marriage. तो मेहर एक अमाउंट है जो लड़की है उसको मिलती है जो ब्राइड ग्रूम है, जो ग्रूम है उसके साइड से यानी लड़के की तरफ से, और ये अमाउंट जो है वो फिक्स कर लिया जाता है मैरिज के पहले या मैरिज के समय और या सेलिब्रेशन के बाद, और वो उसको इसके लिए एंटाइटल होती है. डिवोर्स. अ मुस्लिम मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय डिवोर्स इन 2 वेज. 2 अगर कंडीशंस हैं तो उसमें जो मैरिज है उसको हम डिसॉल्व मान सकते हैं या करार दिया जाता है. दैट इज विदाउट रिकोर्स टू कोर्ट्स, by recourse to courts. A, पहला देखते हैं. Following are the important aspects of this type. When the divorce proceeds from husband and through his will without giving any clause, it is called as talaq. It may either be irrevocable or revocable. तो हमने देखा अभी जो 3 तलाक लॉ है अभी उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, पर पुराना जो लॉ है उसको एक बार देखते हैं, जिसके अनुसार जो डिवोर्स है वो हस्बैंड वाइफ को दे सकता है. जो वर्ड तलाक है उसको हम कह सकते हैं वोकल होकर, रिवोकल होकर या इररिवोकली उसको अधिकार है कि वो दे सकता है. तलाक में आइदर भी स्पोकन वर्ड्स और बाय अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज तलाकनामा. वो हम कह सकते हैं वर्बली दे सकते हैं और चाहे तो उसको लिख तलाकनामा के नाम से डॉक्यूमेंट कर भी दिया जा सकता है. It is not necessary for the wife to be present when the talaq is pronounced, but the wife must be informed about it. और शायद ये प्रोविजन है कि जो जरूरत नहीं है कि जो वाइफ है वो उस समय रहे जब हस्बैंड उसे तलाक दे रहा है, और पर ये है कि उसको इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाए. डिवोर्स में टेक प्लेस बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. दोनों के कंसेंट से भी डिवोर्स हो सकता है. इट इज लॉफुल फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड टू गिव हिज वाइफ द पावर टू डिवोर्स हिम ऑन सर्टेन कंडीशंस. और कुछ जो कंडीशंस हैं वो भी लॉफुली जो मुस्लिम हस्बैंड है वो उसको ये पावर होता है कि उन कंडीशंस के साथ वो वाइफ को डिवोर्स दे. Following are the important aspects of these types. We'll stop here and we'll be discussing further in tomorrow's class.